संतों की वाणी में अक्सर आता है चोर शब्द, और उसका भावार्थ है जो हमारी जीवन ऊर्जा को हर ले, चुरा ले। और एक तो फिर महाचोर, बड़ा चोर है यमराज, जो पूरी ही ऊर्जा को इकट्ठा ले जाता है। लेकिन जिंदगी में भी छोटे छोटे चोर हैं जिनको शटरिपु कह के भी पुकारा जाता है। जो हम क्रोध से भरते हैं तो हम बहुत अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं। जब हम लालच में पड़ते हैं हमारी सारी शक्ति उस लोभ के बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, वो हमें चूस लेता है। तो जिनको भी रिपु कहा जाता है, शत्रु कहा जाता है, वे वही चीजें हैं जो हमारी जीवन ऊर्जा को चूस लेती हैं, खींच लेती हैं। एक प्रकार से हमारी जिंदगी की चोरी हो जाती है। फिर अंत में जो बचा खुचा है वो यमदूत भैंसे पर सवार होके आते हैं और वो ले जाते हैं। सच पूछो तो कुछ बचता ही नहीं, तब तक हम जिंदगी में सब बर्बाद कर चुके होते हैं। संत कहते हैं जोगी चेत नगर में रहो रे, जागे हुए रहो। भगवान बुद्ध भी इस उपमा का उपयोग करते थे। वे कहते थे जैसे किसी घर में दीपक जल रहा हो, खिड़की द्वार दरवाजों से रोशनी बाहर आ रही हो, भीतर बातचीत की आवाज आ रही है लोगों की, तो चोरों को पता है कि घर के लोग जाग रहे हैं, चोर उस घर में नहीं घुसेंगे। और जहां अंधेरा है, सन्नाटा है, स्वाभाविक चोर वहां आकर्षित होंगे। लोग गहरी नींद में हैं, अंधेरे में चोरी की जा सकती है। ठीक ऐसे ही अगर हम भीतर मूर्छित हैं, बेहोश हैं, तो ये चोर हमारी जीवन ऊर्जा को चुरा ले जाते हैं। यदि हम जागे हुए हैं तो चोर भीतर प्रवेश नहीं करते। The Indian sages have used a symbol of thieves. And when they use this word thieves, they mean greed, anger, jealousy, sexuality, hostility, and things like this. They take away our life energy and valuable time. It's a wastage of energy. When you are angry, you are throwing your own precious life energy in some stupid act. The other person may have done something wrong, and you are punishing yourself by wasting your time and energy. And the ultimate thief is death, which takes away whatever is left in 70, 80 years, and there is hardly anything left. We have already wasted the energy. So how do we waste this energy? Let's understand in very short. As there are 4 directions, east, west, north, south, similarly there are 4 psychological directions in which we waste our energy. One is trying to become powerful. The second is money, becoming more and more rich. Third, love and relations. And fourth is knowledge. There may be one thing important for one person. There may be combination of 2 or 3 things also which are attracting you. So these are the 4 main thieves: money, power, love, and knowledge. Most people are wasting their time in love, money, power. Rarely some people are wasting time in gaining knowledge, collecting information, becoming more and more knowledgeable.
more argumentative. But these are the four directions where we are wasting our time and energy. When we become aware that we are doing something stupid, okay, up to some limit it is useful to have money, but after that limit is crossed, it is just wastage. It's not going to help. It is going to create hindrances. Even we become aware of it, then we start moving in the same direction by taking 180-degree turn. Suppose somebody was just mad after earning money, he has collected lot of money and he feels there is no fulfillment, no contentment. Now what is going to do? He may start donating money, giving money, but still the center of his life is money. First he was collecting, now he is sharing. The focus is still outside. Somebody was trying to become powerful physically or politically so he can torture others. That's the only use of power. What else you can do with the power? You can manipulate others. You can dominate others. If this person becomes aware that this was just stupidity, is not gaining any peace, any bliss, then he may just turn opposite. He may start self-torturing. He may become a sannyasi, the so-called sannyasi, doing austerity, creating misery for oneself. He is the same person who was torturing others, now he is torturing his own body. He is hungry, but he has decided he will not eat today. He is the same violent person. Now he is dominating, manipulating his own body. Again, he is just wasting time and energy. This is not real spirituality. People think they are doing something spiritual when they are donating money. They think they are doing something spiritual when torturing the body. Somebody was just mad after love and relations, and now he has become fed up. Now he will renounce the world. He will say, okay, I'm fed up, I'm leaving the family, no more friends, no more society. I'm going to the forest and live alone. Remember, the focus is still outside. First he was running towards people, now he is running away from the people, but the central focus of his life is people. First he was for love, now he is against love. First he was for friendship, now he is against friendship. But he is the same person. Friendship and love and relation are the main point in his life. Now the fourth category, who was very much interested in reading and studying and getting post-graduation and PhD and again doing post-graduation in a different field. I know one person who has got post-graduation degree in 4 different fields. He was studying till age of 50. Here is one friend. He did his PhD at the age of 75. He's an electronic engineer. He got his PhD at the age of 75. Now he is 82.
Now he's again joined a 2-year course of MBA. Knowledge. Knowledge is very important. When you become fed up with the knowledge and information, and you don't want to become Google anymore, because the machine can do it, why you are wasting your time? Then the person just goes against the intellect. Then he will start doing stupid things, and what he thinks these are religious and spiritual. He will become a blind believer. First he was very much argumentative, very much logical. Now he will move in the opposite direction. Remember, the direction is same. He is taking 180-degree turn, still running on the same path. Now he is against intellect. He is against logic. He is more pro for magic rather than logic now. Blind believer, believing in miracles and doing stupid things in the name of religion. So these 4 kind of people, whether they are running towards something or away from it, the focus of attention is always outside. The money is outside, the friend is outside, the political post is outside, and the knowledge is outside. Then what's the real spiritualism? It is going in. Nothing to do with the outer things. प्यारे मित्रों, 4 प्रकार की दिशाएं हैं जिंदगी में, जिनमें चोर हमारी सारी शक्ति हर लेते हैं. जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम है, ऐसे ही मानसिक रूप से 4 मुख्य दिशाएं हैं जिनमें हम दौड़ते हैं. एक दौड़ है संपत्ति की दौड़, और धन कमा लूं और अमीर हो जाऊं. एक है शक्ति की दौड़, चाहे भौतिक रूप से शरीर मेरा बलशाली हो, गुंडागर्दी कर सकूं, दादागिरी कर सकूं, या और बड़े तल पे फिर राजनेता बन जाऊं, किसी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाऊं जहां दूसरों को सता सकूं. तीसरी दौड़ है प्रेम की दौड़, मित्रता की दौड़, घर गृहस्थी, संबंध. और चौथी दौड़ है ज्ञान की दौड़, खूब जानकारी इकट्ठी कर लूं, बहुत विद्वान हो जाऊं, नोबेल प्राइज मुझे मिल जाए. ये 4 प्रकार की दौड़ें हैं. अक्सर एक व्यक्ति किसी एक दिशा में दौड़ता है. कहीं कहीं पे हम कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं. एक आदमी 2 चीजों के पीछे दीवाना है. एक दिशा में दौड़ते दौड़ते जब हम थक जाते हैं और कोई संतोष हासिल नहीं होता, तब स्वाभाविक हमारा मन कहता है कि दिशा बदल लो. एक आदमी बहुत नाम कमाने की उसमें था कि मेरी इज्जत हो. याद रखना, नाम और जिसको हम कहते हैं यश, ये प्रेम का ही विक्षिप्त रूप है. जब हम कहते हैं प्रेम, तो हमारा मतलब है 2-4 लोगों से. और जब हम कहते हैं यश कमाएंगे, इसका मतलब हजारों लोग मुझे जाने, लाखों लोगों को मेरा नाम पता हो. वो प्रेम का और पागल हो गया रूप है कि अब 2-4 से काम नहीं चलेगा. एक आदमी यशस्वी होना चाहता था, बड़ा फिल्म अभिनेता हो गया. देख ली उसने फिल्मी झूठी जिंदगी, सब झूठ ही झूठ है. घबरा गया, थक गया. और ये भी पता चल गया कि कितना ही यश कमा लो, करोड़ों लोग भी तुम्हें चाहें, तो तुम्हारी जिंदगी भीतर तो खोखली की खोखली है, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं. अब इसको लगता है मैंने गलती कर दी, चलो इस बार सांसद का चुनाव लड़ लेता हूं. अभी अपनी दिशा बदल रहा है. उसको लगता है कि राजनेता खूब मजा कर रहे हैं, हम बुद्धू बन गए, अभिनेता बन के नेता बनना चाहिए था. कोई आदमी नेता बन गया, बड़े ऊंचे पद पे पहुंच गया, और भीतर तो वही खालीपन है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ.
कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई तृप्ति नहीं। उसको लगता है कि मैं बुद्धू बन गया, धन कमा लूं, अमीर हो जाऊं, अब इस ऊंचे पद का उपयोग भ्रष्टाचार में कर लूं, रिश्वत में कर लूं, खूब अमीर हो जाऊं, तब जाके संतोष मिलेगा। कोई आदमी इसका विपरीत किया हो सकता है वो धन कमाने में लग गया हो छोटी उम्र से और बड़ा धनी हो गया, अब उसको लगता है कि कुछ जिंदगी में मजा तो आ नहीं रहा, अब वो अपनी दिशा बदल सकता है। या तो खुद ही राजनीति में उतर जाए या किसी राजनेता को सपोर्ट करने लगे ताकि वो इसकी बात सुने और ये पावरफुल, इनडायरेक्ट वे में पावरफुल हो जाए। जो व्यक्ति ज्ञानी होने की दौड़ में लगा था उसको भी कभी न कभी समझ में आ जाता है कि मैं मूर्खता कर रहा हूं, इतना पढ़ लिख लिया, इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इससे होगा क्या? गूगल और इंटरनेट और चैट जीपीटी मुझसे करोड़ों गुना ज्यादा जानते हैं, उससे होगा क्या? अब विपरीत दिशा में अपनी ऊर्जा को वेस्ट करना शुरू करेंगे। मन का तर्क कहेगा, पहले तो कहेगा कि दिशा बदल लो, तुम पूरब तरफ दौड़े थे, वहां क्षितिज नहीं मिला, दिखता तो था कि 2-3 किलोमीटर दूर है मगर नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलो पश्चिम की तरफ दौड़ते हैं, वो दिख रहा है क्षितिज। मजे की बात है कि क्षितिज आप कहीं से भी देख लो, वो उतनी दूर है। उत्तर की तरफ दौड़ लो, थक गए, नहीं आया क्षितिज हाथ में, लगता है दक्षिण की तरफ दौड़े, हमने दिशा गलत चुन ली थी। जिंदगी छोटी सी है और एक दिशा में भी दौड़ना और आगे निकलना मुश्किल है। 8 अरब आदमी है दुनिया में, जिंदगी छोटी है और एक दिशा में हम आगे पहुंच भी गए तब जाके पता चलता है कि हम बुद्धू बन गए, अब किसी से कह भी नहीं सकते। लोग कहेंगे कैसे नालायक हो तुम, 50-60 साल तुमने यूं ही गंवा दिए, कह भी नहीं सकते कि हम बुद्धू बन गए हैं। दूसरों को मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते रहेंगे, सफल हो गए हैं ऐसा दिखाते रहेंगे, भीतर ही भीतर पता है बिल्कुल खाली हैं, खोखले हैं। अब एक नया लॉजिक आता है कि दिशा बदलने से भी कुछ नहीं होता, विपरीत काम करके देखो। समझो आदमी खूब धनी हो गया, खूब अमीर हो गया, अब उसका ही मन उससे कह रहा है कि त्याग दो, छोड़ दो, इतनी मेहनत की इस धन को कमाने में, और धन ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा हुआ नहीं। याद रखना, धन ने कोई आश्वासन नहीं दिया था, ये आपके ही मन की कपोल कल्पना थी। अब वो फेल हो गई, अब लगता है कि पैसा बांट दो, लुटा दो, दान दे दो, और फिर इनको कहने वाले लोग मिल जाएंगे कि दान ही धर्म है, और इससे स्वर्ग की टिकट बुक हो जाएगी और मोक्ष मिलेगा और आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। और ये आदमी है तो लालची, तभी तो इतना अमीर हो गया, बहुत लालची है, बहुत लोभी है। अब इसको एक नया लोभ पकड़ रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पा लिया, अब मृत्यु के बाद का भी इंतजाम कर लिया जाए। याद रखना, ये वही का वही लालची आदमी है। अब ये मंदिरों में, सामाजिक क्रियाकलापों में, स्कूल में, अस्पताल में डोनेशन देने लगा। इससे भी इसकी नाम और इज्जत बढ़ रही है और ऊपर की स्वर्ग की टिकट भी बुक हो गई है। तो साधारण लालची आदमी तो दुनिया में इंतजाम कर रहा था कि अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी कार, नया मोबाइल, इसने आगे तक का इंतजाम कर लिया। ऊपर से लग रहा है कि विपरीत काम कर रहा है, सब लोग पैसे के पीछे पागल हैं और ये पैसा बांट रहा है। याद रखना, उसकी मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली है। पहले भी उसकी जिंदगी का मुख्य केंद्र पैसा था, अभी भी पैसा ही है। पहले दूसरे से खींचना था, अब दूसरे को देना है, लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु वही का वही है। कोई अंतर यात्रा नहीं हो गई इससे। जो आदमी दूसरों को सताने में और ऊंचे पॉलिटिकल पोस्ट पे पहुंचने में बहुत इंटरेस्ट रखता था, अपनी जिंदगी जिसने दांव पे लगा दी थी, और
अब वो इसका उल्टा करेगा, उसका इंटरेस्ट तो ताकत में है, शक्ति में है। इसको लगता है कि अब मैं अपने ही शरीर को सताऊं, ये तपस्या करने लगेगा। और इसको समर्थन करने वाले और इसकी पूजा करने वाले मिल जाएंगे कि अरे इतने बड़े महात्मा देखो क्या क्या करते हैं, इतने दिनों से उपवास कर रहे हैं, महान तपस्वी हैं, तेज धूप रहती है तो भी खड़े रहते हैं धूप में, छाया में नहीं खड़े होते। कोई सज्जन है वो खड़े हुए हैं, उनका नाम ही पड़ गया खड़े श्री बाबा, वो खड़े ही रहते हैं, बैठते ही नहीं है। अब ये है मूर्ख आदमी, मगर इसकी इज्जत करने वाले मिल जाएंगे, भीड़ लग जाएगी आशीर्वाद लेने वालों की, पैसा चढ़ाने वालों की। और इस आदमी को पहले भी इसी में रस था, शक्ति में, ताकत में। अब ये दूसरे प्रकार से शक्ति और ताकत का एहसास कर रहा है। ये अपने ही शरीर के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहा है। आप किसी दूसरे को भूखा मारो कि खाना नहीं खाने देंगे, तो अन्य लोग बचाने आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, कोर्ट कचहरी बीच में आएंगे कि भाई आप क्यों खाना खाने से उसको रोक रहे हो, ये तो हिंसा है। मगर ये आदमी कहता है कि हम कसम खा ली 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। कोई इसको रोकने नहीं आएगा, उल्टे इसके चरण स्पर्श करने वाले आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, अखबार वाले आ जाएंगे, टीवी वाले आ जाएंगे कि आदमी देखो उपवास कर रहा है। और 3 दिन के बाद उन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया कि नहीं 10 दिन तक करेंगे। बड़ी वाहवाही हो रही है। ये आदमी वही दुष्ट आदमी है जो पहले दूसरों को सताता था, अब ये खुद को सता रहा है, और खुद को सताने में इसको सम्मान भी मिल रहा है, और मन ही मन वो आगे अपने मोक्ष और निर्वाण का इंतजाम कर रहा है। वो आदमी जो प्रेम दीवाना था, 25 गर्लफ्रेंड बना चुका था, 4 शादी कर चुका था, बड़ी घर गृहस्थी बसा ली थी, अब वो घबरा गया, थक गया, अब एकदम भाग खड़ा होना चाहता है। वैसे तो जिसने 1 शादी की है वो भी भाग खड़ा होना चाहता है, मगर ये तो बहुत ही मुसीबत में फंस चुका है। ये किसी ना किसी दिन भागेगा और तब ये त्यागी कहलाएगा। हमारे जितने त्यागी महात्मा हैं जो घर गृहस्थी छोड़ के आ गए हैं, उनकी पुरानी जिंदगी की कहानी आपको पता नहीं है। वो प्रेम दीवाने थे, है ना, वे घबरा गए, थक गए, परेशान हो गए। उन्होंने कपोल कल्पना की थी कि प्रेम के द्वारा स्वर्ग मिलेगा और हाथ में आया नरक। अब क्या करें, छोड़ो, भागो। इतने नाराज हो जाते हैं वो कि समाज को ही छोड़ दो, शहर को ही छोड़ दो। उनको डर है फिर कहीं किसी के प्रेम में ना पड़ जाएं। आपको पता है मिर्जा गालिब को दिल्ली से कलकत्ता जाना था अंग्रेजों के जमाने में। उस समय कलकत्ता में ऊपर वाला कोर्ट हुआ करता था। उनको पहुंचने में 3.5 साल लगे। हद हो गई। जिस गांव से गुजरे वहीं कोई सुंदरी मिल गई, वहीं बैठ कर गजल लिखने लगे। बड़ा घना नाता हो गया, घनिष्ठ हो गए। 15-20 दिन बाद जब झगड़ा शुरू हुआ तब वहां से आगे खिसके। मगर सुंदरियों की कोई कमी है, हर जगह है। 3.5 साल लगे, वहां कोर्ट केस था। शायर तो शायर है, हर जगह दिल दे बैठते। अब जब तक वो दिल वापस ना मिले आगे कैसे बढ़े। महीना 15 दिन में वापस मिल जाता है वो, फिर आगे बढ़े। ऐसे लोग फिर त्यागी हो जाएंगे। वो एकांत में वास करने लगेंगे, गुफा में जाके रहने लगे। अब हमको किसी से मिलना ही नहीं, किसी की शक्ल नहीं देखनी, और हम समझेंगे कि बड़े महात्मा हैं, बड़े धार्मिक आदमी हैं। ये धार्मिक वार्मिक कुछ नहीं है। पहले भी इनके जीवन का केंद्र दूसरा व्यक्ति था और अभी भी इनका केंद्र दूसरा व्यक्ति है। पहले दूसरे व्यक्ति की तरफ भाग रहे थे, उसमें अपनी जीवन ऊर्जा गंवा रहे थे, अब दूसरे व्यक्ति से बच रहे हैं। भाग दौड़ जारी है, ऊर्जा वेस्ट अभी भी हो रही है। अब वो चौथा आदमी
जो ज्ञान के पीछे दीवाना था, दिन रात पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था, अपनी खोपड़ी का भार बढ़ाता जाता था, आखिर एक दिन वो थक जाएगा। अब ये उल्टा काम करेगा, ज्ञान के विपरीत। अब ये अंधविश्वासी हो जाएगा, चमत्कारों में आस्था रखेगा, कहीं भी श्रद्धा कर लेगा। अब ये बुद्धि के विपरीत। जब हरे रामा हरे कृष्णा वाले अमेरिका पहुंचे पहली बार, आप जानते हैं कौन एकदम से आ गए उनके पास? वो जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लोगों को पीएचडी करा रहे थे, थक गए थे दिमाग का काम करते करते, वो एकदम से आ गए। उन्होंने सिर घुटवा लिया, तिलक लगा लिया, माला पहन ली और भजन करने लगे, हरे राम हरे कृष्णा। वो लोग जो ज्ञान में बहुत उत्सुक थे और ज्ञान से थक गए थे और किसी प्रकार से एक अवकाश, एक छुट्टी चाहते हैं, उनको छुट्टी मिली। सिर घुटा के कीर्तन कर रहे हैं। कोई धर्म नहीं हो जाएगा इससे, सिर्फ एक वैकेशन हो गया। बुद्धि से थक गए थे, अब बुद्धिहीन कार्य करेंगे और वो उसको धर्म समझ लेंगे। तो संसार की चार दिशाएं, ये चार चोर। और पहला हमारा तर्क कहता है कि हमने गलत दिशा चुन ली थी, अब चलो दिशा बदल लें, पहला लॉजिक। फिर दूसरी दिशा में भी असफल रहे, क्योंकि क्षितिज कहीं से भी पकड़ नहीं आएगा। हमको यह समझ में नहीं आता कि क्षितिज है ही नहीं, हम सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई। डायरेक्शन बदल लो। वो कर करके देख लिया, तब हम कहेंगे अब हम इसका उल्टा करके बताएंगे पूरा। जब दो पैर पर खड़े होकर कुछ न मिला तो शीर्षासन करके क्या मिल जाएगा? तुम आदमी तो वही के वही हो। तुम धन कमाओ कि दान दो, तुम बुद्धि की गुलामी करो कि बुद्धिहीन अंधविश्वासों में पड़ जाओ, तुम प्रेम के दीवाने हो जाओ या प्रेम के दुश्मन हो जाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, तुम तो वही के वही हो। इस प्रकार तथाकथित संसारिक आदमी की भी सारी जीवन ऊर्जा चूस लेते हैं ये चोर। और तथाकथित हम जिनको धार्मिक समझते हैं उनकी भी सारी जीवन ऊर्जा चूस लेते हैं। वो गहरी बात पकड़ में ही नहीं आती कि हमें अपने स्वयं के भीतर स्थित होना है। जहां जीवन ऊर्जा का भंडार है और जो खर्च होता जा रहा है। ये जो गहरी समझ है, यहां से असली अध्यात्म शुरू होता है और अंतर यात्रा शुरू होती है। तो बाहर चाहे संसार की दौड़ हो, चाहे धार्मिक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोटरी क्लब जा रहे हो कि मंदिर जा रहे हो, दोनों चीजें बाहर हैं, आप बाहर ही जा रहे हो, भीतर पहुंचना नहीं होगा। आप वर्ल्ड टूर पर निकले हो कि चारों धाम की यात्रा पर निकले हो, आप घुमक्कड़ व्यक्ति हो, आपको घूमने फिरने का शौक है, आप धार्मिक हो तो आप चार धाम की यात्रा करने लगे, नास्तिक होते तो आप वर्ल्ड टूर पे चले जाते। आप हो वही के वही आदमी। तो आपकी चार धाम की यात्रा से आपको कोई वैकुंठ धाम नहीं मिलने वाला, खूब अच्छे से समझ लो। जैसे वर्ल्ड टूर को नहीं मिलने वाला, ऐसे ही चार धाम यात्री को भी नहीं मिलेगा। असली बात थी अपने भीतर के धाम में पहुंचना, ध्यानस्थ होना।